Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. This is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 24th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे. We just had a conversation with Mr. Lassie, and I think it was an amazing conversation about the same issue that we raised about motivation and how the people can adopt art in their lives. And I think it was an amazing conversation. And now, yet another, we have this communication with Mr. Jarar Hashmi, who is with us today, and he is a very energetic and enthusiastic trainer. He has been providing trainings and seminars at different organizations and at different institutes. So welcome on the board, sir. Thank you. Thank you so much, Hassan, for inviting me. Gerard Saab, this whole pandemic and this claustrophobic atmosphere is found around the world, and it's like it's getting very difficult for us to make the survival, and everybody is like having this pessimism and negativities are found, and people are not really positive, and the situation is getting worse and worse as far as the Pakistan environment is concerned, and as far as what things are going on here in Pakistan, the dynamic is totally out of the way. So people are really not focused. They don't know what to do, what not to do. By people means I mean to say that students are also really not well, because obviously they are really worried. They have these worries. They have this negativity in their minds at what to do. Sometimes universities announcements are there. Sometimes government policies are there. Sometimes so there is a lot of pressure that has been created by external environment and whatever is going on. आपके सब कुछ सामने है. Sir, what would you like to comment on that, and how would you uh, tell them कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को अब लेके So, चलें? Hassan, you are very much right. We are living currently in the worst situation right now, and it's very difficult for people to look at the positive side. Mhm, So, by starting this, I mean, this is the worst time now. And this is positive, I tell you how. Because from now onward, when the pandemic is over, we can say that we can face every situation if we have survived through this situation. You get my point? So mhm, people say this when someone start their career, okay, if you have the worst boss in your initial years, you are not going to have any problem with your future bosses. So mhm, this is the worst time that we are facing, economy wise, business wise. So if we can survive this, we can, inshallah, we can survive any problem regarding future, regarding cash flow. So we can look at this perspective. I mhm, know this is very difficult time, and it's very difficult for us, for any people to look positives. But this is how we start. This is how we start. Everything is so negative. Like your cash flow is negative, where your business, your customers, nobody is willing to purchase, nobody is willing to buy anything. So mhm, this is the worst time. Inshallah, this is going to be over after some months. So I can say I can survive. If I have survived this time, I can take on any problem. I can survive in any situation. So mhm, that's what I'm gonna say to your first question. mhm. Jalal Sahab, I think it's very true. I totally agree with you with the fact that, like you raised this point, that if you have that kind of, you talked about boss, that if you have the worst boss, then so I think this is an example that many other people may relate, because if you're talking about students, so obviously there are some students who are really having their jobs too. So they Mm. have to go to offices, and they are most of them are trainees, most of them are the people who are doing their internships or trainee programs and all. So uh, talking about this professional life and talking about this जॉब जो आपने बात की कि जो लोग अभी एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं फॉर्चुनेटली, और उनको दे हैव नॉट बीन फायर्ड. सो सर, they are also very much demotivated on the inside. Why? Because obviously downsizing is going on, and then there is this kind of thing found कि भाई everybody is going towards cost saving. तो ये भी एक इशू है. तो स्टूडेंट्स आर रियली मोर कंसर्न कि भाई फ्यूचर Yes, में sir. क्या I होगा, will. मैं किस तरीके से Uh, सरवाइव करूंगा, क्योंकि ऐसे भी I स्टूडेंट्स would हैं जो like पढ़ रहे to हैं अपनी ले respond. रहे हैं जॉब्स. Yeah, I would like to respond on that. Okay, I was once having a vacation. I think on Thailand or Malaysia. राइट. 5 minutes.
if you have heard of Robert Kiyosaki, is a very good motivational speaker, very good writer. So I just took the book and just opened randomly, na. So I read something very valuable, and that is, a man should rely on three resources. One All right. is their daily income, another is their assets. Mm-hmm. Assets like gold, assets like machine, land वगैरह जो जिनकी value appreciate करती है. And third is their investment. From Right. their passive investment, from there they can earn money monthly. Mm-hmm. उससे का the biggest flaw that I can see in many people life, they rely on the first income, that's it. All They right. rely on their one income, they go to the job, they earn it, that's it. They rely on that income. All right. People who create wealth are most of those people who have these three type of income. So in this pandemic, we also realize this, okay, we must not realize, we must not based our income on one single, you can say, business venture. Okay, we should, now people talk like this, okay, you know shadi hall business is also going down, सही ना, और बिल्कुल. कपड़ों का बिजनेस जा रहा है, वो सही है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वी हैव रियलाइज दिस कि हमें जो है वो एक तो एक चीज पे रिलाय नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में. इस ठीक है. पैंडेमिक में ये चीज तो हमें रियलाइज हो गई. Mm-hmm. Plus, it's also a business opportunity for some businesses. Now, we can say that we can see this, that people are now going online, which are against it. People are selling their stuff on online. They are updating their skills. There are many teachers, there are many trainers whom I know, they don't know about anything specifically of technology. They believe in their old school, but now they are opting it. This means they are this, due to this pandemic, they are updating their skills. They are moving towards another trend, which is also very a positive thing in the society, okay, Mm-hmm. updating your knowledge. Yeah. तो अगेन अगर आप मेरी बात करें तो मैंने भी थोड़ा मोटा जो है वो डिटॉल विटॉल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बिकॉज आई कैन सी दिस कि फ्रॉम द नेक्स्ट Yeah. 6 months, 7 months, 8 months, इस चीज की बिजनेस की डिमांड बड़ी होगी. Mm-hmm. So again, people should realize this कि when they face this type of situation, अगर एक जगह बहुत मसला आ रहा है तो there must be another door that they should Yeah. knock, कि यार There is यहाँ पे always मसला there है is तो कोई always ना an कोई opportunity. और डोर पे तो हमें जाना पड़ेगा. So Mm-hmm. there are also opportunities. आप देख रहे हैं कि जो those who are doing online business like ये जैकवा वगैरह, इन पैंडेमिक में उनकी वेल्थ बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है. So this is another aspect of this, कि people are moving their businesses to online. That will be very helpful in future as well. Yeah. So, and many of the companies, I would endorse your point that many of the companies who were not dealing online business, or who were not into Yes, this yes. kind of thing, into this. So they are right now they are quite they got to know कि where the weakness was. So they are now really thinking, those organizations or those people who were having these kind of businesses, they are now thinking कि हमने तो इस चीज को serious लिया ही नहीं था लिया online नहीं business था. को. I do not want to mention a company here, but I have worked in such kind of a company where things were going. It was a service organization, service sector. It was a service-oriented company. So what was happening there that they were not online. Even when I spoke with them, so because I have very good acquaintances with them, so they put it on the table. They brought it on the table with me. They discussed it. Okay, now we also had to move towards online business. We had to bring our product, our service. कि हमने फिर उसको लॉन्च किया और हमने उसको शुरू किया क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है पूरी कॉस्ट बैठ गई और लॉसेस जो है वो बेयर करने पड़ गए. तो ये एक ऑब्वियसली चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड को देखें कि क्या चल रहा है और फिर कोई भी अगर रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके अंदर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी जरूर होती है. एंड यू हैव टू Yes, हाईलाइट दैट exactly. That's अपॉर्चुनिटी. वेरी ट्रू सर, टोटली अग्री विद यू. अच्छा जरार साहब, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी कह दिया है और मुझे नहीं पता लोगों ने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना है या नहीं सुना है गौर से. और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ये है कि लोगों ने इस बात पे बड़ा गौर करना है कि आप ने जैसे कहा ना कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं जब इनकम की बात करते हैं
जब हम ये कहते हैं कि आपने जैसे कहा कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक इनकम पे। एक इनकम पे, और हम दूसरी इनकम को जनरेट कर ही नहीं पा रहे होते हैं, हमारे साथ ये भी मसला होता है। तो सर लेकिन मैंने खुद ये देखा है कि मैनी ऑफ द पीपल वर देयर बिफोर दिस पैंडेमिक, और वो जॉब्स कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू किए। लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, पैंडेमिक आ गया, थिंग्स गॉट डाउन, थिंग्स गॉट वर्स, और सिचुएशन बहुत खराब हो गई, तो उनके वो बिजनेसेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए, नीचे हो गए, बैठ गए। ठीक है, अब उनको उनमें हिम्मत भी नहीं है, दे डोंट हैव इवन दिस करेज कि वो खड़े हों। लेकिन वो उन्होंने बैकआउट कर लिया, कुछ लोग जितना सर्वाइव कर पा रहे हैं कर रहे हैं, अगर रेस्टोरेंट के बिजनेस में है तो चलो फिर भी वो ऑनलाइन चला रहे हैं काम को और कर रहे हैं। लेकिन सर वहाँ एक मसला ये भी आ जाता है, अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आजकल मैंने, क्योंकि मैं बीइंग ईडीसी मैनेजर, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं सर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम सुबह जो है वो जॉब कर लें, शाम में अपना काम शुरू कर लें। जैसे आपने कहा कि दो जगह से इनकम आएगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन सर उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारी जो एक सोच है ना, या हम लोग जो हैबिचुएट हुए हैं, वो हुए हैं इस चीज को लेके कि बाय द एंड ऑफ 10th ऑफ द मंथ, 10 तारीख तक हमारे अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएं, और जिस दिन नहीं आएंगे हम बहुत ज्यादा फिर डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता। So sir, what would you like to say about that kind of thinking? How would you react to that? सर What would देखिए, you advise on that? बीइंग Yeah. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ टोटली डिफरेंट और डिफिकल्ट जॉब. Mhm. First thing you need to see this ke whether you are an entrepreneur or not, or you are willing to become an entrepreneur. There जी. are many things that you have to risk. हम्म. ये जो रिस्क टेकिंग हम कहते हैं ना, ये बड़ा छोटा वर्ड होता है. जी. लेकिन सर जब आप ये रियल लाइफ में करते हैं ना, तो ये आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है, इतनी टेंशन स्ट्रेस ये करके. ये मैं आपको बता रहा हूँ, बट एट द एंड इट्स वर्थ इट. हम्म. बहुत सारे लोग जो ये करते हैं कि क्या नाम है, ये जो 10th की आपने बात कही, ये बिल्कुल सही कही. But those who are very passionate about their any job, any aspect of their life, हम्म. एक quotation है कि entrepreneurship is like when you quit your 9 to 5 job and start doing your 24 hours a day job. हम्म. एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो 24 घंटे अपने बिजनेस के बारे जी. में सोच रहा है, इतना उसको पैशन होता है उस चीज को. then they should start it. If they are starting it only for money, they are not going to make it, because इतने इतने हर्डल्स आते हैं. स्टीव जॉब ये कहता है कि इतना आपको पैशनेट होना चाहिए, क्योंकि इतनी रुकावटें आती है. इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, then you will quit, you will definitely quit. So being an entrepreneur is a roller coaster ride. If you are ready to take the risk, take the chance, then you should go ahead. And you are right, जिन लोगों ने स्टार्ट किया होगा अभी, बाकी उनको नहीं, बाकी मेजोरिटी आप देखें ना कि कितने सारे बड़े बिजनेस जो करोड़ों अरबों के चल रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इतने सारे एम्प्लॉयज को जो है वो कर दिया है, जी. ले डाउन रिडंडेंट कर दिया है, डाउन साइज कर दिया है. सो हम्म. हाउ कैन वी, ये बिल्कुल टफ टाइम है. जैक मा ने भी कहा है कि दिस ईयर इज ऑल अबाउट सर्वाइवल. या. नॉट इवन योर बिजनेस इज ओनली या. फॉर यू. यू आप सर्वाइव करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट दैट यू विल मेक इन दिस ईयर इफ यू सर्वाइव. या. वेरी ट्रू. प्रॉफिट तो आप नेक्स्ट ईयर कमा लेंगे. दिस ईयर तो जब चाइना का रिचेस्ट आदमी ये बात कह रहा है, तो ठीक है, बिजनेस बंद होता है, बहुत अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का एक बिजनेस के साथ एक इमोशनल वो होता है. लेकिन उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि होल्ड ऑन. ये थोड़ा सा टफ टाइम सिर्फ आपके लिए नहीं है, यकीन करें सबके लिए. सारे मेरे बिल्कुल. दोस्त हैं वो ये बात बिल्कुल कर रहे हैं. बिजनेस बंद हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं. क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हम में से वी हैव नेवर सीन सिचुएशन लाइक दिस. सो राइट. अब ये है कि बिजनेसमैन के लिए आपको, आप जो कह रहे हैं कि वो 10 तारीख का वेट, शुरू में तो 2-3 साल की स्ट्रगल ऐसी होती है कि बिल्कुल आपको अपना सब कुछ भूल जाना पड़ता है. आप यकीन करें कि व्हेन आई स्टार्टेड माय सेंटर, व्हेन आई स्टार्टेड माय सेकंड सेंटर, आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, क्योंकि कोई बैक में मेरे पैसा वैसा नहीं था. तो बहुत ज्यादा टेंशन होती थी, स्ट्रेस होती थी. बट इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, फिर आप कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपकी बड़ा उसमें सपोर्ट करता है. राइट. अच्छा ये जरार साहब, लेकिन एक बात यहाँ बहुत आप इम्पोर्टेंट है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिसको हाईलाइट किया कि हम हमारा जो मतलब जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, बल्कि चले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ सर। अब अ, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनमें भी सर डेफिनेटली दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड। अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात करें, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करें, और पिछले सेशंस में भी हमने हमारे सामने ये बात आई है
कि अ, यानी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन है, यानी वो दे आर नॉट रियली सेटिस्फाइड। स्टूडेंट का यही यस, कहना होता ये है, बिल्कुल आई एम आल्सो वो हम फेसिंग ये दिस बात कर काइंड रहे ऑफ। होते हैं कि एडेप्टेबिलिटी की तरफ जाना है, हमसे मुराद ये कि सिस्टम ये कह रहा है कि यू शुड अडेप्ट, यू शुड गो टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन स्टूडेंट का ये कहना होता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट इज बीइंग टॉट, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ूंगा। अब वो ये कह रहा है कि मेरा ये मसला हल कीजिए, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू Right. हिम। सर क्या कहेंगे इस Online, they can this kind of question we have already faced it. In this response, I say this: okay, right now, I want to go on a vacation. Right now, me, I want to go on a vacation and I want to have a cruise experience, eating lavish food, वगैरह. Oh, bhai, we are not in the ideal situation right now. एग्जैक्टली? We are facing the worst situation. Sir, I want to sit in the class and have the feel of the class. I like to ask question like this. When people say this, so I say this कि we are not dealing with the ideal scenario here. Now it's all about minimize the damage. अब हम ये नहीं देख रहे हम आपको कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम डैमेज को कितना कम कर सकते हैं. वी आर नॉट डीलिंग with the ideal scenario, or change is always messy in the start. Whenever you go to the change, obviously बात है, for example, if you go to sleep every day at 11 p.m. and you जी want to go to sleep now at 9 p.m., so it will be very difficult in the start. It will be very difficult for you to go to sleep 2 hours early. So जी change is always messy in the start. And plus, we don't have any other option. Plus, we are not dealing with the ideal scenario कि यार ऑनलाइन क्लासेस में सर वो मजा नहीं आता. हमने कब का मजा आता है? टीचर से पूछे आप. टीचर को खुद वो क्लास की फील इतनी अच्छी लगती है, क्लास में पढ़ा रहा है, वो बच्चों से बातें हो रही है, वो टहल रहे हैं. पता कि एक जो टीचर जो पैशनेट होता है वो ये बोलेगा. जी बट राइट नाउ एहसन साहब, हम लोग वी आर यूटिलाइजिंग आर मैक्सिमम रिसोर्सेस. हर टीचर मैक्सिमम ये देख रहा है कि व्हाट वी कैन डू बेस्ट टू आवर स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट ये देखता रहेगा कि आइडियल सिनेरियो ओहो वो चीज नहीं हो रही, तो फिर उसको बड़ा मसला होगा, क्योंकि अभी हमारे पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं है. नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना जरार साहब कि व्हाट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन वी हैव। हम तो वहां जाएंगे ना जो इस वक्त मौजूदा It's हालात what हैं उसको best देखते हुए, या possible what व्हाट इज we द बेस्ट have, पॉसिबल। because एग्जैक्टली। corona, we have to take it seriously. सही है ना? We have to take it seriously. It's like we cannot risk the life of our students. Some student might say this कि it's okay sir, आप बुला लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, open कर दें. But we cannot risk the life of students. It's not worth it. तो फिर वही छोटा नुकसान और बड़े नुकसान की बात हो जाए कि अगर इफ आई आर टीचिंग ऑनलाइन तो 30% अगर डैमेज हो रहा है तो इट्स ओके. आपका लाइफ डैमेज ना हो, बस वो सही है. बिल्कुल सही बात है, हाँ। सही है. तो छोटा नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको बुला के आपकी लाइफ क्रिटिकल उसमें पहुंचा दें, बैंड पे पहुंचा दें. इससे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ें, और ऑनलाइन इंशाल्लाह आपको इनिशिएट करना पड़ेगा. व्हेन यू सी दिस कि यार दिस इज द ओनली ऑप्शन एंड वी हैव टू स्टडी ओनली विद दैट ऑप्शन, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो ऑप्शन आपको अच्छा लगने लगेगा. पहले बिल्कुल उस सही। तरीके से सोचे तो आप. जरार साहब, बल्कि मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। फैजान पाशा साहब से मेरा सेशन हुआ, गालिबन कल जी ही जी हुआ है। तो जी जी. आई वाज स्पीकिंग विद हिम, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बताई। तो ऑब्वियसली इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी गुफ्तगू हो रही होती है गेस्ट्स के साथ, तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में ऑब्वियसली रह जाता है। कहते हैं ना कि आप हर आदमी से सीखते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पहलू बताया, क्योंकि ही इज ऑल्सो अ टीचर। सो ही सेड कि जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और जब मैं लेक्चर दे रहा होता था पहले, तो आई यूज टू सी द एक्सप्रेशंस ऑफ स्टूडेंट्स कि ये अगर बच्चा बैठा है तो व्हाट इज ही थिंकिंग। इफ दैट स्टूडेंट इज सिटिंग ओवर देयर एंड ही इज टोटली हश, ही इज नॉट स्पीकिंग एट ऑल, सो व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू हिज माइंड। दैट वाज द थिंग दैट आई ऑलवेज एडमायर्ड, आई ऑलवेज थॉट कि यार कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं देखूं, इससे पूछूं, इससे नोटिफाई कराऊं इफ देयर इज समथिंग दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो आपने जैसे बात की ना कि जब आप फिजिकली होते हैं तो ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हैं, आपको मजा आता है। इट्स लाइक थिएटर. लेकिन उन्होंने ऑल्टरनेट क्या निकाला जो पढ़ा रहे थे, क्योंकि ही वाज अ टीचर। ही सेड कि मैंने सबको बोला कि भाई जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपने कैमरास को जो है वो एक्टिव रखिए, ऑन कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ माय क्लास, स्टूडेंट ऑफ माय क्लास में देखना चाहता हूँ। ही सेड कि मैंने इंटरेक्ट किया उनसे, और व्हाट्सएप पे ही वाज ऑलवेज अवेलेबल। तो अभी जो एग्जाम हो रहा था, तो अकॉर्डिंग टू हिम, फैजान पाशा साहब, अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैंने तस्वीरें भी मंगाई हैं बच्चों से,
बच्चे मुझे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे तस्वीरें भी भेज रहे थे, दे वर शेयरिंग ऑल ऑफ द पिक्चर्स, दे वर शेयरिंग ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट वेयर एवर दे गॉट स्टक, कि भाई दिस हाँ इज द हाँ प्रॉब्लम, सही। दिस इज द डायलेमा दैट वी आर हैविंग, सो दिस इज हाउ you carry out things, this is how you You need to carry on. manage. Management is very important, sir. That's what I Pasha teaches at my institute. Huh? He अच्छा teaches अच्छा. at my he's my friend too. So that's what I'm saying. Even Pasha and many other teachers that I know, they are putting बेचारे their maximum efforts Yeah. कि किसी तरीके से ये जो चीज है कि ऑनलाइन पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो कुछ और हर टीचर अपनी तरफ से इनिशिएट करके कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि इस चीज को, वो डैमेज को वो कम से कम कर दे। तो ये Exactly. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि व्हेन वी टीच वी सी मेनी एक्सप्रेशन कि वेदर अ चाइल्ड इज लिसनिंग और नॉट, बट इन ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन में नॉट एवरीवन इंटरेस्टेड इन ओपन द कैमरा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर, हर किसी के पास आई डोंट थिंक सो कि ऐसी रिसोर्सेस होती हैं, और वो बेचारे शायद पसंद करें ना करें, तो ये इस पे थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन अब यही है कि whatever resource we have available, अगर ये ऑप्शन होता है, अगर हर बच्चा इसको ऑप्ट करता है कि यस वी कैन ओपन आवर कैमरास, तो ये भी बड़ा अच्छा है कि कम से कम हम देख तो पा रहे हैं एक दूसरे को। Yeah, yeah, it was his own approach, but कहने का मकसद है कि it should be managed somehow, ताकि यस यस। क्योंकि सर एक टाइम ऐसा भी रहा है जो मे बी आई एम रॉन्ग हिस्ट्री के अंदर, कि क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम डिफरेंट वक्त गुजरे हैं इंसानों पर, और मुश्किलात रही हैं, तकालीफ रही हैं, सो पीपल हैव इवन लॉस्ट देयर सेमेस्टर्स, दे हैव लॉस्ट देयर ईयर्स, मतलब साल जाया हुए हैं। तो अब यही है कि एक कोशिश यही की जानी चाहिए कि अगर किसी का कोई साल बच सकता है, या कोई पेपर बच सकता है, या कोई टाइम बच सकता है, तो दैट शुड बी सेव्ड बाय बिल्कुल। एनी कॉस्ट। या सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्या कहेंगे सर? आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, और पेंडेमिक भी है, और वक्त ही वक्त भी है, और अ, जो है हम फ्री भी बैठे होते हैं, और हम नहीं भी होते हैं। अब जो एक बात पहले कही जाती थी, इट वाज ओवररेटेड, दैट आई डोंट हैव टाइम, आई कांट डू दैट, दैट कैन बी सेड, एंड इसमें हर लोग, सब तमाम लोग शामिल हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। नाउ इफ आई से दिस ना, दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज, so मैं बोलूंगा कि आई एम अ वेरी sluggish person, then आई एम अ वेरी lazy person, that is what is called laziness, that is what is not that has nothing to do with time, कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। सर क्या कहेंगे इस Yes, पे, ये जो yes, एक you या need to manage time since we have up now so much time, but we have so much distraction as well. The first one is cell phone. Biggest distraction of all time is our cell phone. So for time management, the biggest I can say the tip that I can give to anyone is कि before starting a day, write down your task a day before. कि tomorrow I have to do this. This is the biggest time management secret कि ये हमें लाजमी करना है, क्योंकि अदरवाइज यू आर नॉट गोना यूज द टाइम एफिशिएंटली। ठीक है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सरसाइज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी व्हेन आई हैव नॉर्मल डेज होते थे तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था। आजकल मैंने बिल्कुल इतना नींद 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 समझे हो ये गई एक है। हैरान कुन बात है, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये ये मसला हुआ आपने है बिल्कुल जरार सही साहब बात जी। कही। सो कन्वर्ट योर शुड इनटू मस्ट, या वेरी कन्वर्ट ट्रू, योर शुड इनटू मस्ट। मुझे अग्रीड। एक्सरसाइज करनी चाहिए, आई शुड डू एक्सरसाइज, नो, आई मस्ट डू एक्सरसाइज, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क ऑन दिस डेडलाइन। या दिस शुड बी आवर अप्रोच। टाइम इज द मोस्ट वैल्यू। देखिए टाइम, आप पैसा खो के दोबारा कमा सकते हैं। आपकी जॉब चली जाए, जॉब दोबारा आ सकती है। बात समझ में आई सर? खोया हुआ पैसा दोबारा कमा सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन गया हुआ टाइम वो आप वापस दोबारा नहीं आएगा। नहीं ला सकते। सो यू हैव दिस टाइम, और दिस टाइम सेम टाइम है जो जैक मा के पास अवेलेबल है, सेम टाइम जो बिल गेट्स के पास है। दे ऑल हैव दीज 24 आवर्स। द यूज ऑफ दीज 24 आवर्स विल मेक डिफरेंस इन आवर लाइफ। एंड हाउ वी आर गोना यूज इट, हम जितना ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं उतना ज्यादा एफिशिएंट बनते हैं। और जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस नहीं करते, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गो टू lie on their bed watching Netflix, watching TV dramas. सो ये जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस करेंगे उतना आप अच्छा यूटिलाइज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल यही है कि अ डे बिफोर write the thing that you must do. So ये must do, not like I have to do this, should do this, must do, and stick to the plan. ये राइट, अगर आपकी हो गई है तो फिर इंशाल्लाह आपकी टाइम मैनेजमेंट पूरा आपके उसमें आ जाएगा। राइट। जरार साहब, व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज स्किल्स राइट नाउ?
किन वेज के I'm थ्रू sorry. कैसे, अब मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त हमने कोई भी इंसान जो है अपने स्किल्स को कैसे बढ़ा सकता है, व्हाट आर द बहुत वेज सर थ्रू ये व्हिच, या अभी बिकॉज़ इट्स राइट वेरी नाउ बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आपने हाँ सही सवाल किया. वी हैव सो मच टाइम एंड पीपल आर लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम यूडेमी. And I have personally met 2 or 3 person, and they told me कि यार through this 2 months time I have learned this skills from YouTube. मतलब राइट, those who are willing, first of all people are not will. जब लोग will ही नहीं है तो वो कहाँ से सीखेंगे. आपकी क्लास में एक बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा, आप कुछ भी करके देखो वो नहीं पढ़ रहा. जी, तो अब आपके सामने जो बंदे फारिग बैठे हुए हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि वो अभी मेरे एक स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट हुआ था, उसने कहा मैंने पूरी बुक पढ़ ली वाली. अच्छा, दे आर स्टडिंग बुक्स, रीडिंग autobiographies, स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब. सो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से, लेकिन अब इसमें वो बच्चा कहाँ जाएगा जो विलिंग ही नहीं है. तो अगर इस तरह का टाइम है, आपको उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है. स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग, फॉर सेल्फ लर्निंग. You have to learn by yourself. You have to initiate it. Go to YouTube. There are many, every skills, every, I think maximum skills are on YouTube. If I want to see how to increase my YouTube subscriber, if I want to see how to learn editing, how to do this, everything is on YouTube. But the या thing is that I have to write it. How to learn this? I have to show willingness. Otherwise, दुनिया का सारा इल्म मेरे सामने हो तो मैं जब तक नहीं उठाना चाह रहा हूँ तो मैं को क्या कर सकता हूँ. तो राइट, स्टूडेंट्स को यही मैं एडवाइस करता हूँ कि यूटिलाइज दिस टाइम एफिशिएंटली. और इस टाइम पे आपको सेल्फ डिस्कवरी का आपके पास सबसे बड़ा टाइम है. सेल्फ सेल्फ डिस्कवरी के डिस्कवरी मैं बिल्कुल, हूँ कौन, मुझे क्या अच्छा लगता है लाइफ में, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर टाइम अलोन. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर विद द फ्रेंड्स, विद द फोन. यहाँ पे भी फोन हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से ज्यादा टाइम आप अकेले हैं. तो ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है कि मुझे मेरा पैशन किसकी तरफ है, विच कैरियर शुड आई चूज, विच कैरियर शुड आई फॉलो. इस टाइप की रिसर्च का टाइम है ये. सर। और बिल्कुल ये एक हकीकत है कि सेल्फ डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को खुद को जानने का टाइम है, और जब और हमारे पास क्योंकि ये टाइम नहीं होता कि हम खुद के साथ बैठें या खुद से बातें करें या खुद के बारे में सोचें। खुद से बातें करने की से मुराद मेरी यहाँ पे ये कि पॉजिटिव टॉक, खुद को जानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जरार साहब, ये बताएं कि ऑब्वियसली देयर आर मेनी पीपल हु हैड बीन लुकिंग फॉर जॉब्स, जो कि एक जमाने से तो नहीं, खैर पिछले कुछ अरसे में हो सकता है जॉब्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेरे पास सीवीज भी आती हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो भेजते हैं और अपॉर्चुनिटीज अभी भी ढूंढ रहे हैं, दे आर स्टिल होपिंग। और ऑब्वियसली होप होती है और उम्मीद होती है तो खुदा ऑब्वियसली आपकी मदद करता है और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। लेकिन सर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जरा इम्पेशेंट एटीट्यूड है। ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल होते हैं हर इंसान के साथ, लेकिन वो इस चीज को, ये जो एक डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ना कि आई डोंट हैव द जॉब, या आई एम गोइंग टू लूज माय जॉब, या हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड अनदर जॉब। सर इससे, इस डिप्रेशन से, बिल्ट इन डिप्रेशन Sir, है, हाउ टू डील विद इट? they need to change their mindset. Instead of searching for job, which is very difficult right now in pandemic, they should learn the skills which are being used in this pandemic and try to sell that skill. Okay, this is the skill that needed today. स्किल को आप वो करें. आप जॉब, आप जो काम करते हैं वो 9 to 5 करते हैं, अभी वो नहीं मिल रही है, तो अब क्या करें? लर्न स्किल, लर्न समथिंग न्यू जो आप देख सकते हो. आप अपने एम्प्लॉयर से पूछें कि क्या स्किल्स की डिमांड है, अपने फ्रेंड से पूछें, एंड लर्न दैट स्किल्स एंड देन अप्लाई विद दैट स्किल्स, और स्टार्ट गिविंग फ्रीलांसर जॉब. लाइक कि यार आप अप्लाई करें, आप फ्रीलांस करें, आप प्रोजेक्ट करें कि लाइक गिव मी द प्रोजेक्ट, आई विल डू इट. तो जी फॉर दैट, क्योंकि जॉब सर अभी तो मैं बिल्कुल। नहीं समझता कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, बहुत मुश्किल. मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप क्या कर सकते हैं कि स्किल्स की तरफ जा सकते हैं. आप स्किल्स सीखें जो आपको लगता है कि इसको मैं सेल कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसकी तरफ जाएं ताकि थोड़ी बहुत आपकी अर्निंग भी उस पर होती रहे. राइट सर, कैन सोशल मीडिया बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस? सोशल Yes, मीडिया yes, को यूटिलाइज किया जा exactly, सकता है? exactly. People are eating food now. People are eating food on daily basis now. And they are नहीं, eating on more daily than basis. before.
Yeah. Yes, more than before. So I know some of my one of my student, and she started baking and she is running very good business these days. And she told me कि pandemic के बाद जो है वो काफी ज्यादा orders और बढ़ गए. हम्म, So इस तरह से सोशल मीडिया से ही स्टार्ट होता है. तो हम्म, मेरा एक स्टूडेंट है वो शर्ट सेल कर रहा है. इस अच्छा. तरह से उसने कहा ऑनलाइन कर दी, उसने उसने शर्ट से लगा दिए पैसे. तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन तो आप समझिए, ऑनलाइन तो आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आज आप नहीं है. ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत जरूरी है आपके बिजनेस की. तो राइट. ऑनलाइन बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं. ऑनलाइन बिल्कुल राइट ऑनलाइन की सर. तरफ जा सकते हैं. ऑनलाइन की तरफ ऑब्वियसली हम जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, और मैं बल्कि आपसे, आपने शेयर किया उससे मैं भी ये शेयर करूंगा कि मैनी ऑफ द पीपल आई हर्ड कि उन्होंने कुकिंग सीखी है घर पे बैठ के, हाँ. and they have utilized it. मतलब I came across many people in my circle जिसमें मैंने देखा कि they have learned cooking and they have tried it and they are running it from their homes. तो वही 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 आपकी बात है कि अपॉर्चुनिटी छुपी होती है वहाँ पे जहाँ कहीं प्रॉब्लम हाँ. होती है, बट ये होता है कि आपको ऑब्वियसली इसको हाईलाइट करना होता है. मास्क के बारे में इवन दो ये कहा जा रहा है कि वो स्टैंडर्ड एसओपीस के मुताबिक नहीं बन रहे हैं मास्क जो कि लोग बना रहे हैं आम, लेकिन उन्होंने एक गैप तो देख लिया कि इस Yes, वक्त इसकी नीड exactly. है, सो लेट्स I वर्क ऑन told इट. you this. Like, I have invested in this. I have invested little amount in this business. Detol, Mars, some Cefix. Pakistan is a very good company. Initially started by one of my friend. So this is a very good opportunity. Again, whenever there is a problem, there is also an opportunity. Opportunity to do something. अगर आप एक चीज देख रहे हो कि अब ये नहीं हो सकती, तो लोगों ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज निकाल के सेल करना शुरू कर दिए. ऑनलाइन से देखिए फायदा क्या हुआ. कराची का बच्चा भी पढ़ सकता है, लाहौर का बच्चा भी मुझसे पढ़ सकता है, जी इस्लामाबाद का बच्चा पढ़ सकता है जी मुझसे. जी बिल्कुल. सो अगर आपको अपना शिफ्ट करना होगा माइंडसेट, यू हैव टू शिफ्ट योर माइंडसेट. देन देन ओनली यू कैन सी द अपॉर्चुनिटी. And your circle, your friend circle, if your friend circle is like that, they are only looking at the problems, you will always see the problem. राइट. सही ना. सर तो your friend circle also matters a lot. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु आर प्रोफेशनल्स, या एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को लेके सिंसियर हो, या आप उनसे कुछ सीखने को आपको मिल सीख रहा हो. सकते हो. तो ऑब्वियसली आपको जो है वो अपने आप को ऐसे इनगल्फ करना चाहिए ऐसे लोगों से. अच्छा जरार साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में पूरी, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था बट अभी वो सवाल मेरे दिमाग में आया, सो आई एम गेटिंग बैक टू व्हाट वेयर वी वर. एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कहा था कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आप फिर 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, आप फिर 8-9 घंटे काम नहीं कर रहे होते हैं. लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि जॉब में तो भाई मुझे 9 to 5 जाना है, सो आई हैव टू रिपोर्ट ओवर देयर, एंड ऑब्वियसली मैं वहाँ पे आई एम नॉट द बॉस. तो वहाँ तो आई एम द बॉस जी, आई विल बी एट होम और यू नो आई विल बी रिलैक्स्ड. सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज आल्सो फाउंड कि लेकिन जबकि आपने उसका रिवर्स बताया कि जब आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने तो 24 घंटे काम करना है. उसकी लॉजिक एक ये है कि अगर कोई ऑर्डर आ गया, कोई चीज आ गई, कोई चीज अटक गई है, सो आपको यू हैव टू वेक अप इन द मिडनाइट एंड यू हैव टू गो एंड यू हैव टू हैव इट डन. As सर इतने yeah, in लॉजिक the है. start, in या. the start, in the when you start your business, then your approach should be like this: 24 hours job. Once your business is established, या. you have manager, then you can delegate the task. But at that point, your question was कि भाई people are willing, तो क्या होना चाहिए भाई? When you are, if you are willing to start your business, जी you must have storm inside you. You know, I can change the world with my product. I can change the world with my service. Yes, after a couple of years, when you think your business is established, yes, you can delegate the task. Yes, you can have a very good life, but at the same time, you have to take the responsibility and you have to take the stress. At the end, it's your business. So या. that if you are relaxing too, maybe that person is doing this is stress management. If you are even working, क्योंकि जो लोग चला रहे हैं उनको पता है कि even we are enjoying, but at the back of the head we have the जी. stress कि यार राइट. कितना बड़ा business, जितना बड़ा business होता है उतनी फिक्रात भी ज्यादा होती है. ट्रू. ट्रू. जरार साहब, हर मुसीबत या हर परेशानी जो होती है वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, फिर चाहे हाँ कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली. हो. ठीक है. तो सर आपने इस पेंडेमिक से क्या सीखा है? ये जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क की हुई हुई है, पूरी दुनिया की हुई हुई है, आपने क्या सीखा? सो दैट वे यू नो वी लुक एट यू एंड वी लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस.
मैं हर आदमी के Sir, सामने ये सवाल रखता हूँ I can क्योंकि say फिर this. डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं और समझ में आती है कि अच्छा इन्होंने ये सीखा हाँ, है, तो उसको कैसे फिर हम जो है ना अपने मतलब फोकस कर सकते हैं उसको अपनी लाइफ के अंदर। जी सर। सर एक मैंने बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, मैंने ये सीखा है कि जो मेरे जो बिजनेसेस हैं हम्म, वो एटलीस्ट उसमें से एक आध जो है वो ओनर उस पे होना चाहिए था, रेंट पे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अच्छा। जो रेंट की कॉस्ट है ना, अच्छा इससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई चल रहा है, यहाँ से उठाते हैं यूं कर देते हैं। लेकिन इस पैंडेमिक ने मुझे ये सिखाया कि अगर मेरे 5 यूनिट्स हैं तो कम से कम 2 तो मेरे अपने होने चाहिए। ये इससे पहले मैं नहीं सोचता था, इससे पहले मेरी ये थिंकिंग नहीं थी। लेकिन राइट नाउ अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई इसके बाद मैंने अपने टारगेट्स बना लिए कि मुझे ये चीजें ओनरशिप में लेकर आनी है। ये मैंने इस पैंडेमिक से सीखा है। सर रेंट हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम इनफैक्ट, वेरी मतलब बिग, दिस इज द वेरी फॉर मतलब जिसको बिजनेसमैन। देना है वो भी प्रॉब्लम में है, और जो दे हाँ नहीं पा रहा है तो सामने वाला ये कह रहा है कि भाई दिस इज द ओनली इनकम दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन, सो इफ यू आर नॉट हाँ पेइंग मी हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव। सर्वाइवल तो दोनों जगह only होना है ना सर। if you own the place, as for example if I am doing, if I have centers and I own the place, then तब मुझे थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि मुझे ये वाला इतना परेशान नहीं करता जितना आजकल वो कर रहा है। लेकिन अल्लाह मालिक है, लेकिन ये चीज मैंने इसमें रियलाइज की है, सीखी सर है यू आर मैंने। टॉकिंग, जरार साहब आप अभी तक पूरी गुफ्तगू में मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि हाउ टू बी मोटिवेटेड, हाउ टू स्टे पॉजिटिव, हाउ टू बी एक्टिव, यू नो। सर व्हाट हैज केप्ट यू मोटिवेटेड सो फार? Sir, the love for the job, the love for the teaching, that's it, sir. ऑलराइट। I want to change, I want to engage, I want to be the बस आप कह सकते हैं कि बहुत अप एंड डाउन आते हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, but you have to keep yourself busy, you have to keep yourself moving as far as you are moving, क्योंकि there are time when you are stressed, there are time जब आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब फेजेस से मैं गुजर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। इफ यू रिसर्च दिस देन यू कैन इजीली से एंटरप्रेन्योरशिप की एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये ज्यादा है आप अगर आप रिसर्च भी करेंगे। बट बस अल्लाह का पर भरोसा है, और बस अच्छे से अच्छी करने की जो आपकी भूख होती है ना, कि यू हैव, अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है तो आपको करना है कि यार बस आप इसको कैसे ओवरकम करेंगे, इसको जी। ओवरकम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, कभी मजहब से सपोर्ट ले रहे हैं, कभी मेंटोर से सपोर्ट ले रहे हैं, कभी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं, हार के नहीं बैठ गए कि यार नहीं यार ये नहीं हो रहा। तो एज फार एज यू आर कमिटेड टू योर जॉब एंड यू लव योर जॉब, तो इंशाल्लाह कोई भी चैलेंज आएगा ना, आप इंशाल्लाह देखिए, चैलेंज तो आने, और ऐसे आने हैं कि हर चैलेंज आपको पहले से बहुत बड़ा लगता है। जी। हमेशा कभी मैं सोचता था यार अब मेरी लाइफ थोड़ी सी, जब कभी भी आपकी लाइफ स्टेबल नहीं होगी, ये माना जाता है। हमेशा हर चैलेंज आपको पिछले से बड़े लगेगा, और उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, एंड दिस इज द लाइफ ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। राइट। जरार दिस साहब इज जब मैंने लाइफ। आपसे ये सवाल किया ना, जब मैंने आपसे ये सवाल किया कि व्हाट हैज केप्ट यू मोटिवेटेड, तो आपने बोला टीचिंग, बिकॉज दैट्स योर पैशन। तो सर क्या मैं या ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन देन लाइफ हाँ, बिकम्स सो गुड? क्या कहेंगे यस इस यस पर? एग्जैक्टली, लाइफ बिकम्स सो गुड, एंड like you have that you can say courage to deal with the problems, to deal with the challenges. If you love your job, if you love your job, if that is your passion, so no matter how big is your problem, you will eventually face it and get yourself out from it. That's what राइट। I believe. Okay, you should do that and trust on Allah, trust on God, and सबसे keep yourself moving. मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई ना, बैठना नहीं है, बैठेंगे डिप्रेस हो जाएंगे, बैठेंगे जी। खत्म। जी। किसी ना किसी को फोन लगाओ, उस बंदे को फोन लगाओ, दूसरे बंदे को फोन लगाओ, फैमिली से डिस्कस करो, इससे डिस्कस करो, अच्छा कोई बुक पढ़ लो, उसके मुताबिक यूट्यूब में देख लो किस तरह से उस चीज से निकलना है। कीप योर सेल्फ मूविंग, कहीं ना कहीं वो एक क्लिक होगा, हाँ सही सही सही, और वो फिर आपको वहां से दे विल कीप यू आउट ऑफ, फिर आपकी वो एक अलग पोस्ट वो होगी। क्योंकि हम सबको अपना बैगेज, we all must carry some baggage inside our head or at the back of our head, कि when we fall down या। तो हम क्या क्या चीजें देखें, क्या क्या चीजें हमें अपना पता हो कि यार किस तरीके से हमें वहां से निकलना है।
कौन सी मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कौन से आपके फेवरेट ऑथर्स हैं, फेवरेट राइटर्स हैं, फेवरेट मूवीज हैं, क्योंकि हर चीज में आपको मोटिवेशन मिल सकता है। वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहां भी आपको मसा लगे आपने उस फेज में दोबारा जाना है, अपने आप को तैयार करना है, मोटिवेट करना है और जी जी। बैक ऑन ट्रैक। राइट। अच्छा जरार साहब, बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन मैं सवाल थोड़े अजीब से ही पूछ लेता हूँ, हाँ कभी हाँ। कभार पूछ लेने चाहिए। जैसे आपने ये बात कही कि पैशन, व्हेन पैशन बिकम्स प्रोफेशन, इट्स वेरी गुड, यू यू अग्रीड विद द फैक्ट। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में पैशन इज समथिंग and profession is something. If they leave the profession, if they leave the profession, they won't be able to make both ends meet. They won't be able to make a survival. And if they go towards it, if they stay to the profession, अगर profession पे ही रहते हैं और passion की तरफ नहीं जाते हैं, तो एक boredom भी create हो जाता है, बोर हो जाते हैं, एक बड़ी monotonous सी job लगना शुरू हो जाती है। सर कैसे इस बैलेंस को मेंटेन किया जा सकता है? सर दिस इज दैट इज अगेन आई विल से एंटरप्रेन्योरशिप कि आप कह रहे हैं ना कि अगर वो अपने इफ ही डजंट परस्यू प्रोफेशन तो उसके सर्वाइवल का मसला हो जाएगा। Again you have to take the risk, you have to take the risk. If you are, रिस्क for इज वेरी example, इंपॉर्टेंट या। if you are doing 9 to 5 job and then you are have your marketing agency for 2 hours, for 3 hours, but you want to pursue your 2 3 hours agency because you like that work, you have to take risks. You have to take risks. This is how you start. And risk यस। taking is the most difficult step. Is the most I can say most मोस्ट difficult डिफिकल्ट जिसमें स्टेप एंड सारे मोस्ट एनकरेजिंग स्टेप, मतलब हिम्मत एंड चाहिए इसके लिए। या 90% लोग यहीं पे मार या खा जाते हैं। ये जो रिस्क या। टेकिंग वर्ड होता है ना, ये है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन जी। जिसने रिस्क लिए है ना, उसको पता है कि उसने क्या क्या किया है अपनी राइट। जिंदगी में राइट। उसको स्टार्ट करने के लिए। Right. Gerard sir, what message would you like to give to the listeners out there who are listening to you? What would be the conclusion of the whole conversation This that you is a think message this that is I the, would like yeah, to give कि yeah. learn some new skills in this pandemic. You have plenty of time, and inshallah, this pandemic will over soon. Inshallah, and this is the if you have seen this time, if you survive in this time, then inshallah you will survive any challenge in your life future on. Right. Gerard sir, it was a pleasure talking to you. So thank you so Same much कि here, आपने same here. वक्त निकाला और time दिया हमें. And really, sir, we wish you the best of luck on behalf of Indus University. I would like to give you a lot of duas और बहुत सारी दुआएं, prayers आपके साथ sir. और thank you so much sir, आपने वक्त दिया और आप सबका भी Thank you, बहुत sir. शुक्रिया कि Thank you आपने so हमें much. सुना. Thank you. Thank you. Thank you so much sir. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.